Now, the land of India display the variation, the relief features. ये display कर दे. Suppose ये major landform है. Landform है कि mountain, plateau और plain, the three major landform. But हम लोग we discuss about the physical features of India. India का physical features about the 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर ये लैंड है. ये डिस्प्ले, ये आपका लैंड का ये डिस्प्ले है, जिसमें कि फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, latitudinal variation I have already discussed in the previous chapter, latitudinal and the longitudinal. But here the features, the land of India display the great physical variation, geological. But would you know one of the most important, the oldest, the land in the peninsular in this land? Yes, but the recently formed, one, the Great Wall of North, and second, the northern plain. Northern plain and the Himalaya mountain, both are the recently formed due to the geologically, the peninsular plateau constitute one of the ancient landmass on the Earth's surface. You know, it was thus supposed to be one of the stable land block. From the view of the geologic, the Himalaya mountain form the unstable zone. The whole mountain system of the Himalaya represents the very huge topography. Second, the high peak हो, deep हो, valley हो, gorge है, canyon है, जो कोई, तो ये जितने भी लैंडफॉर्म बने ड्यू टू द ग्रेडेशनल, ड्यू टू erosional, transportational and depositional features with the help of the agent of gradation के द्वारा. But now major physiography division such as number one, the Himalaya mountain. Just the north of the Himalaya is the northern plain, the Great Northern Plain. North of the Great Northern Plain, its oldest the landmass, ancient oldest landmass such as the Peninsular Plateau. Northwestern part of the Gujarat and the Rajasthan is the another the relief feature such as the Thar Desert and desert. But both the coastal eastern coast, western coast, eastern coast and the western coast. Two island group, peninsular plateau. So one eastern coast, western coast, eastern ghat, western ghat, island group, peninsular, northern plain, and the desert area. So meaning the variation of relief features, the physiography division. So physiography division बोलो, physical division of India बोलो या relief features बोलो, ये सारे फीचर्स जो है आपके इंडिया के लैंडमार्क
जो आपका लैंड मास है, द ओनली द 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उस लैंड मास पर आपका ये फिजिकल फीचर्स है, रिलीफ फीचर जिसको कहते हैं। नॉट द यूनिफॉर्म फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, due to climatic condition, due to the variation of the natural relief features, fog, जितने भी फीचर्स हैं, आप जितने भी लैंड फॉर्म देखते हो फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी एंड अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात के बीच में जो भी नेचुरल फीचर्स, नेचर नॉट मैन मेड, द नेचुरल फीचर्स, चाहे वो डेजर्ट रीजन एरिया में देखोगे, लाइक सैंड ड्यून देखते हो, बरखाम देखते हो, कोस्टल एरिया में देखते हो, बीच देखते हो, सी क्लिफ देखते हो, ये सब मेजर लैंड फॉर्म है। या पेनिनसुलर प्लेटूजन एरिया में, प्लेन एरिया में देखते हो, यूथ स्टेज में, मेच्योरिटी स्टेज में, ओल्ड स्टेज में, ये जितने भी लैंड फॉर्म है, ये सारा लैंड फॉर्म नेचुरली फॉर्म है, नॉट द मैन मेड। चाहे वो कश्मीर वैली हो, कुल्लू वैली हो, या जस्कर वैली हो, तो ये जितने भी है, बट वी डिस्कस अबाउट द टुडे ओनली वन द रिलीफ फीचर सच एज लाइक द हिमालय माउंटेन को हम लोग न्यू यंग फोल्ड माउंटेन करते हैं, यूथ स्टेज में न्यू यंग फोल्ड माउंटेन, इस तरह का देखोगे, न्यू यंग फोल्ड, बिकॉज दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि two physical features, one and second, the northern plain and the Himalaya mountain, two features are recently formed due to the geological feature process. Only one the landmass like a peninsular plateau, the ancient landmass. Peninsular plateau like the ancient landmass. But we know the Pamir Court, चीन की दीवार जिसको कहते हैं पामीर कोट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, so two Hindu Kush and Kullu mountain, the most northern part of the Himalaya, the Great Wall of North, जिसको लोग प्रहरी के रूप में भी देखते हैं, the Great Wall of North, the extend from the north to east. It means JK, Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh. But the Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh, the nature of land is not the uniform. Nature of land is not uniform. From start the Jammu and Kashmir section in the Arunachal Pradesh, uneven, undulating topography. Uneven and undulating topography due to the formation of the landform in the interval area. These mountain ranges, the Jammu and Himalaya mountain ranges run from the north to west and the north to east. Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh and northwest direction. So on the river basin, so Indus and the Brahmaputra. So Himalaya presents the lofty mountain. So thus is the hanging lofted mountain.
from the north to the east, the upper portion and the lower inner portion, जो उठा हुआ भाग है हिमालय का उसको हम एंटीक्लाइन कहते हैं, जो दबा हुआ भाग है तो सीक्लाइन कहते हैं। पिक कहते हैं, कहते हैं कि ये देख रहे हो हाइट का वेरिएशन देख रहे हैं, ये हाइट का वेरिएशन है। तो एबव द सी लेवल से देखते हैं हाइट का वेरिएशन, ये कहीं पर ज्यादा हाइट है कहीं पर कम हाइट है, ये वेरिएशन है। मगर जितने भी ऑल द मोस्ट द अपर द नॉर्दर्न लेयर, नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द हिमालय इज कवर्ड द ह्यूज मास ऑफ द आइस। ये ऊपर का जो पोर्शन देखते हैं हिमालय का वो, क्योंकि द एक्स क्या है, द हाई एल्टीट्यूड above the sea level and decrease the temperature करें। रज है, उबर खबर है, एंडुलेटिंग है, ये बैरियर के काम करता है, इसलिए इसको कहते हैं कि इसको हम लोग कहें या तो ग्रेट वॉल ऑफ नॉर्थ कहते हैं, बैरियर ऑफ इंडिया कहते हैं, न्यू यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, यूथ द हिमालय माउंटेन कहते हैं, किसी भी नाम से, क्योंकि ये सारा एरिया जो है दे फॉर्म एज द आर्च कोनिकल शेप में आर्च शेप में, देख रहे हो, विच कवर द डिस्टेंस अबाउट दम। अब यहां से वहां चले जाओ, जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी अरुणाचल प्रदेश 2400 किलोमीटर, बट 400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, बट द वेरिएशन कहाँ है, आप देख रहे हो जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्या अरुणाचल प्रदेश में उसकी जो वेट है, कहीं पर आपको 400 मिलेगा, कहीं पर आपको 150 किलोमीटर मिलेगा। तो चौड़ाई के साथ यहाँ अगर यहाँ हम लोग देखते हैं ये रीजन अगर 400 किलोमीटर है तो अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। ये मोस्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरुणाचल को नमचा बरुआ कहते हैं। ये रीजन जो हिमालय का जो रीजन है इसके 3 मेन रेंजेज है, 3 रेंज है, अपर पार्ट, लोअर पार्ट और मिडिल पार्ट। यंग तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री the most the outer part of the Himalaya, most the upper part of the Himalaya is known as the Himadri. Himadri means क्या, जो पूरा रेंज जो है, पूरा एरिया है वो कवर्ड है, ये कवर्ड है किससे, the huge mass of ice, ये कवर्ड है huge mass of ice से, ये कवर्ड है पहला। दूसरा, just the south of the Himadri and लाइक बिटवीन द हिमाद्री और शिवालिक, इन दोनों के बीच का पार्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं हिमाचल एंड लोअर पार्ट कहते हैं शिवालिक। तो ये रेंजेस 3 पैरेलल, द पैरेलल रेंजेज ऑफ हिमालय का। द अल्टीट्यूड वेरिएशन के कारण ग्रेटेस्ट इन द ईस्टर्न पार्ट है, हाफ देन द वेस्टर्न पार्ट है। द हिमालय कंसिस्ट द 3 पैरेलल रेंजेस है। नंबर 1 रेंजेस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, द नंबर ऑफ द वैली इस रीजन में ये है। तो द नॉर्दर्न मोस्ट द रेंज इज द नोन एज द ग्रेट या इनर हिमालय और द हिमाद्री, चाहे तो ग्रेट हिमालय बोलो या हिमर हिमालय बोलो या हिमाद्री बोलो। इट इज मोस्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट द रेंज कंसिस्ट द लॉफ्टेड, क्या है यार, पिक है, हिमालय टू फुट हिल। बहुत सारे आपको वैली है, बहुत सारे आपके यूसेफ वैली है, गॉर्ज है, कैनियन है, हाई है, पिक है, चोटी है, जस्कर वैली है। उसके बाद देखोगे बहुत सारे वैली है, लद्दाख वैली है, जस्कर वैली है, नुम्रा वैली है, और यही हिमालय का ही जो एरिया है ये आपका मेन द नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर क्या है, तो आपका वाटर है। जस्ट साउथ ऑफ द
इनर हिमालय, साउथ ऑफ द इनर हिमालय को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, हिमाद्री। द रेंज, द फोल्ड of the great Himalaya are the nature folded and nature due to the geological है, जियोलॉजिकल एक्सीडेंट करें, जब ज्वालामुखी, जब अब इसको ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड करते हैं, टेथिक सी से रिलेटेड करते हैं, या प्लेट टेक्टोनिक से करते हैं, तो उससे रिलेटेड करके देखते हैं, तब जाकर और द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय के द 3 फोर्सेज है, डाइवर्सन है, कंजर्वेशन है, ट्रांसफॉर्म है, तो ये सारे रिलेटेड करके हम लोग देखते हैं। मगर यहाँ के द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालय आर मेटिकली इन द नेचर, core of part Himalaya compose the granite, the name the granite है, it is the perennial snow bonded area है, and the number of the glacial the range, the laying of the south of the हिमाद्री, पहला देखे जो साउथ ऑफ हिमाद्री है, तो सेकेंड रेंज उसको कहते हैं, जिसको हिमाद्री, हिमाचल, और इसको हिमाचल भी कहो, मिडिल ईयर भी कहो, और इसको हम लोग लेसर हिमालय भी कहते हैं। एवरी रेंज, जितने भी रेंज देखते हो, चाहे वो इनर हिमालय के रेंज देखे या आपका लेसर हिमालय का देखे या आउटर हिमालय का रेंज देखे, एवरी रेंज का जो कंस्ट्रक्शन है द डिफरेंट द मिनरल्स एंड रॉक्स के कारण है। पहला जो फोल्ड है, फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालय, इसके जो पार्ट जो है हिमालय का, वो कंपोज है ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ द इग्नियस रॉक का है। इग्नियस रॉक का फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक इरेप्शन के द्वारा, आग्नेय, फायर ऑफ रॉक। तो ग्रेनाइट इट इज एरिया। नंबर 2 आपका रेंज ऑफ द लेइंग द साउथ ऑफ द हिमाद्री इज ऑल फॉर्म द मोस्ट द रज माउंटेन है, अंडुलेटिंग है, अप एंड डाउन है, फोल्डेड है। सिस्टम इज द नोन एज द हिमाचल, और इसको लेसर हिमालय भी कहते हैं। कंपोज ऑलरेडी है, कंपोज है मिक्सचर ऑफ रॉक का। और इसमें जो अल्टीट्यूड वेरिएशन देखते हैं, हाइट्स के देखते हैं, तो अबाउट द 3700 एंड द 4500 मीटर एम, एंड द एवरेज द विड्थ द 50 किलोमीटर। और बहुत सारे इसमें यहाँ पर आपको मिलेंगे, पीर पंजाल मिलेंगे। फेमस द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज धौलाधर, महावत रेंज in also the prominent ones. The range consists of the famous valley है, चाहे वो कांगड़ा वैली है, कश्मीर वैली है, कुल्लू वैली है, एंड इन ये सारा वैली आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड द हिमाचल प्रदेश। तो वेल, और इसको हम लोग वेल द हिल स्टेशन के नाम से जानते थे। नाउ द थर्ड रेंज पर हम लोग शिवालिक कहते हैं। थर्ड रेंज को हम लोग शिवालिक भी कहते हैं, और आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज ऑल्सो नोन एज द शिवालिक। इनर मोस्ट ऑफ द हिमालय को हम लोग कहते हैं हिमाद्री, एंड लेसर द हिमालय, मिडिल इन बिटवीन द आउटर एंड द लेसर हिमालय कहते हैं। एंड शिवालिक का जो रेंज देखते हो कि 10 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर, हैव द अल्टीट्यूड वेरिएशन बिटवीन द 900 टू 1000 द मीटर्स एबव द सी रेंज। ये सारे जितने भी वेरिएशन देख रहे हैं, 2400 वहां पर देखें, कहीं पर
400 किलोमीटर नजर आ रहा है, तो कहीं पर आपका 150 नजर आ रहा है। 3700 देख रहे हैं और 4500 देख रहे हैं। तो एवरी द पैटर्न ऑफ रेंजेस, जितने भी रेंज देख रहे हैं, ये हिमाद्री है, ये हिमाचल है, ये शिवालिक रेंजेज है। इन रेंजेस की जो हाइट देख रहे हैं, कहीं पर आपको रेस है, कहीं पर हाई रेंज है, बट रेंज कितना है? 2400 किलोमीटर फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, एंड विथ क्या है? 100 किलोमीटर। सेकेंड का 3700 किलोमीटर एंड 4500 किलोमीटर। 900 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर, which can take to 15 kilometer in the most the lower part of the हिमालय का, जिसको हम लोग द शिवालिक रेंज कहते हैं। द रेंज, अब ये रेंज जो है शिवालिक रेंज, as composed unconsolidated sediments brought by the river of the main Himalayas, brought by the river as the main Himalaya। आपका मेन हिमालय का जो रिवर्स है, चाहे वो इंडस रिवर हो या गंगा रिवर हो या ब्रह्मपुत्र रिवर, तो हिमालय के द्वारा। तो यहाँ पर यह यूथ स्टेज में, मेच्योरिटी स्टेज में, ओल्ड स्टेज में 3 स्टेज वर्क का में वर्क ऑफ रिवर का इरोजनल वर्क हो रहा है। तो मेन हिमालय रेंज located further the north, the valley is covered with the thick the gravel and the alluvium, और small gravels कहते हैं कि rocks का, और the fine fertile soils covered है। So you know the longitudinal valley laying between the lesser Himalaya and the Shivalik। lesser Himalaya किसको कहते हैं? you know लेसर हिमालय, इट में द हिमाचल। लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय कहते हैं, इनर हिमालय नहीं है, आउटर हिमालय, लोअर हिमालय कहेंगे। तो लेसर हिमालय एंड द शिवालिक, तो जिसको कहते हैं दून, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन द दून। तो ये इन बिटवीन हिमाद्री, नॉट हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, ये दोनों के बीच का जो लॉन्गिट्यूडनल वैली फॉर द ड्यू टू द नेचुरल फीचर्स के द्वारा, इरोजनल फीचर्स यहाँ काम कर रहा है। कहाँ? अपर पार्ट ऑफ द हिमालय में रनिंग वाटर या ग्लेशियर, स्लो मूविंग ऑफ आइस एंड डिफरेंट द नेचुरल फीचर्स और फॉर, जैसे कि देखो जितने भी वैली आपको है, वैली है, चाहे वो काश्मीर वैली हो, कुल्लू वैली हो, जस्कर वैली हो, वैली देखते हैं। और दून द लाइन इन बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक। नाउ इन द सेकेंड, ये आपका ये हो गया फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट के आधार पर हिमालय के हम लोग द 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड किए। पहला फर्स्ट रेंज हो गया, उसको हम लोग कहते हैं हिमाद्री, सेकेंड रेंज को कहते हैं हिमाचल और थर्ड रेंज को कहते हैं शिवालिक। एवरी रेंज का जो हाइट अल्टीट्यूडल वेरिएशन है, एवरी रेंज वेयर फ्रॉम द सी लेवल द अल्टीट्यूडल वेरिएशन, सरफेस ऑफ लैंड, सरफेस ऑफ द हिमालय का जो सरफेस देखते हो वो काफी द रज है, अंडुलेटिंग है, फोल्डेड है। अब ये रज, अंडुलेटिंग, फोल्ड, आर्च, वैली, गॉर्ज, कैनियन, these are all the features are formed due to the natural agents के द्वारा, चाहे वो रनिंग वाटर हो या रेनफॉल हो। एवरी फीचर, एवरी रेंज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एवरी रेंज, चाहे वो इनर हिमालय हो, चाहे वो मिडिल लेसर हिमालय हो या आउटर हिमालय हो, हिमाद्री हो, शिवालिक हो या हिमाचल हिमालय, आर कंपोज आर फॉर्म इन द डिफरेंट स्टेजेस
and different rocks के द्वारा in igneous and metamorphic rocks in the upper part of the Himalaya. Lower part of the Himalaya Shivalik region area composed in sedimentary rocks brought by the running water, brought by the running water के द्वारा, running waters के द्वारा. Now अब in the second parts just start. The longitudinal division of the Himalaya has been divided. Longitudinal division of the Himalaya has been divided on the basis of the river basin. River basin. The region west to east. The division. अभी हम लोग पहले नॉर्थ टू ईस्ट कर रहे थे ना. पहले हम लोग डिवीजन के नॉर्थ टू ईस्ट द 3 पैरेलल रेंजेस निकाले. पहला रेंज कौन सा था? तो हिमाद्री था. दूसरा रेंज क्या था? हिमाचल था. तीसरा रेंज क्या था? ये शिवालिक था. अब ऑन द लॉन्गिट्यूडनल वैली, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अनुसार द हिमालय को फिर हम लोग डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पर? तो रिवर सिस्टम के आधार पर. वेस्ट टू ईस्ट हिमालय को हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं. तो किसके आधार पर? तो रिवर बेसिन क्या है? पहला है इंडस टू सतलज, सतलज टू काली, काली टू रिहान, रिहान टू द रियांग. अब ये देखोगे द divisions has been demarcated by the river valley. A part of the Himalaya laying between the Indus and Satluj. A part of the Himalaya laying between the Indus और सतलज, इन दोनों के बीच में जो हिमालय का जो एरिया है उसको हम लोग कहते हैं, कौन सा हिमालय कहते हैं? पंजाब हिमालय बोलेंगे हैं? Yes, it is known as the traditional, known as the Punjab Himalaya, but also and the regionally इसको हम लोग कश्मीर एंड द हिमाचल हिमालय के भी नाम करते हैं. जो वेस्ट टू ईस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, वेस्ट टू ईस्ट सतलज टू काली, it is also known the Kumaon Himalaya, and Kali to Tista is the known as the Nepal Himalaya. Tista to Diang is the known as the Assam Himalaya. So river basin Indus, Satluj, Kali, Tista, Diang, ये जितने भी रिवर के आधार पर हिमालय का वेस्ट टू ईस्ट इसको डिवाइड किया गया है, जिसे पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड आसाम हिमालय. There are the regional name, also those the broad categories on the regional name of the Himalaya. Yes, the Brahmaputra make the easternmost boundary of the Himalaya. सबसे ऊंची ईस्टर्न पार्ट में हिमालय का देखोगे ये, क्योंकि अब देखो कि अब द सोर्स ऑफ हिमालय का जो वाटर का जो सोर्स है, ये पामीर कोट देख लो, यहाँ पर ग्लेशियर एक ये रिवर निकल रही है, ये रिवर जिसको हम लोग कहते हैं तशानपो, और यूं ही नमचा बरवा से जैसे यू टर्न लेके इंडियन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में अगर ये घूमता है, इंटर करता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र. तो आपका इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है ब्रह्मपुत्र है, और नॉर्दर्न पार्ट आपका ये इंडस से ब्रह्मपुत्र. ये इंडस का ये रिवर है जो इसका 80% आपको पाकिस्तान को चला गया, इंडस प्लेन. अब यहीं पर आपको नेपाल हिमालय से कोसी का फॉर्मेशन है, और ये हिमालय से देख रहे कि जो टू सृष्टि में अलकनंदा भागीरथी, तो ये गंगा. तो इंडस टू सतलज, सतलज टू काली, काली टू तिस्ता, तिस्ता टू रिहान. तो जस्ट 4 डिवीजन, ये चार भाग में बांट गए. नेपाल हिमालय वेस्ट लेते हैं, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, सॉरी पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और ये असम हिमालय.
Assam Himalaya. और असम हिमालय का द हाईएस्ट पीक देखोगे वो आपका है नमचा बरुआ. और द हिमालय winds sharply to the south and along the eastern boundary of the India. They are also known as the Purvanchal. Also known as the Purvanchal. And the hill run through the northeastern state, mostly composed of the strong sandstone, which are sedimentary rock and covered the dense forest, mostly run parallel ranging valley. Purvanchal comprise in the Patkai Hill, Nago Hill, and Mizo Hill, and the Manipur Hill. So now today discuss the physical features of India, mainly the physical like the Himalaya. So explain या